Non-electrolyte. NaCl. Non-electrolyte. Electrolyte. Sorry. Electrolyte. It is electrolyte. So now why it is electrolyte? Miss, because it has sodium and ion. negative charges, both the charges. Yes. So sodium जो है, now if you have NaCl, it will get dissociate to Na plus and Cl minus. If you have CaF2, it is electrolyte because it will get dissociate. It will produce ions. Yes, all of you. So these are the electrolytes. But अभी मेरे पास में ग्लूकोज है, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, ये डिसोसिएट नहीं करेगा. This won't get dissociate. So these are non-electrolytes and these are electrolytes. Clear all of you? So now next क्या इन लोग ने बोला है, colligative properties of electrolyte. So first colligative property क्या है? The solution of electrolytes also exhibits colligative property. Also exhibits colligative property. Which do not obey the formulas of electrolytes. Which do not obey the formula of non-electrolytes. Now, for example, अगर मैं बोलती हूँ colligative properties, they are directly proportional to number of moles of solute. Yes, all of you. We have seen in all four colligative property, it is directly proportional to number of moles of solute. All of you. Delta P upon P1 naught, that is equal to X2. So it is depending on the moles of solute. Delta TB ho ya delta TF ho, it is directly proportional to molality. Yes, all of you. So molality is directly proportional to number of moles of solute. Yes. So indirectly इससे directly proportional है. Osmotic pressure pi is equal to CRT. So again it is directly proportional. Yes. It is directly. मैम वो proportionality वाला वापस से बोलो ना. See, suppose you have a relative lowering of vapor pressure. So ये इससे directly proportional है. Yes, ma'am. It means it is a colligative property, na? Yes, ma'am. Delta TB is equal to Kp m. Delta TF is equal to Kf m. Yes. Yes. M यानी क्या होता है? What is M? Number of moles of solute upon mass of weight of solvent. हाँ, so directly proportional है दोनों भी Yes. moles के साथ. So it is a colligative property, na? Then osmotic pressure pi is equal to CRT. It is directly proportional. C यानी क्या होता है? Number of moles of solute upon volume of solution. So it is directly proportional to number of moles of solute. So all four are colligative property. Clear? Yes. But colligative properties का formula, colligative property का formula for non-electrolytes and for electrolytes is different.
मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट अभी हम लोग ने ये जो कुछ भी फॉर्मूला स्टडी किया था चैप्टर में, वो फॉर्मूला के बाद क्या लिखा है? दैट वाज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या? which do not Non- obey the formula after, उसके बाद क्या लिखा है एरो करके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी Okay. फिलहाल ध्यान दो, जस्ट आई गिव यू टाइम टू राइट एंड डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। Okay. तो हाँ, so नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट डिसोसिएट, बराबर। तुमने एक मोल ग्लूकोज का डाला तो वो एक ही रहेगा बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं करता है। बट अगर तुम एक मोल NaCl का डालते हो तो तुम्हें 2 मोल्स मिलता है, बराबर ना। इट गेट डिसोसिएट। सो टोटल कितना मिला तुम्हें? 2 मिला ना? Yes, यस। ma'am. You are adding 1 mole of CaF2 and you are getting 2 moles, 3 moles here. So Yes. मोल्स क्या हो रहा है? सोल्यूशन में जाने के बाद चेंज हो रहा है। क्लियर? सो फॉर्मूला भी क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पे जो मोल्स है दैट आर ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे जो मोल्स होता है दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अगर मुझे अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल टू IX2। मैं बता रही हूँ ना अभी I क्या है वो मैं बताऊंगी। डेल्टा TB मैम that is अगर ये सब एक दूसरे के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तुम्हारा जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। नहीं, अगर दोनों इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो दोनों आपस में नहीं होंगे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? केबी और केएफ भी तो आता है ना वहाँ पे, एंड दे आर डिफरेंट। यू कैन नॉट कंपेयर ना, केबी और केएफ का वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी है, वो तो अलग रहेगा ना। वाटर के लिए केबी का वैल्यू अलग है, केएफ का वैल्यू अलग है। ओके, अभी ये आई क्या है? व्हाट इज दिस आई? इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 2 ना, 5:2 अप्रोक्स 2। हाँ, इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए? 3 ना, सो आई इज अप्रोक्स 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? इलेक्ट्रोलाइट्स में आई क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा P अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल टू H2, डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू KBM। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I1 है। क्यों I1 है? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? 1 मोल डालते हो ग्लूकोज का तो वो 1 ही रहता है, इट डज नॉट डिसोसिएट। बट इफ यू पुट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वो डिसोसिएट होता है नंबर ऑफ आयंस में। तो जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज योर आई। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम। वो आई एग्जैक्टली मैम बताता है कि वो कितने मोल्स में डिसोसिएट होता है। यस, सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा। लिखना है तो फटाफट लिख दो। Only my camera is on, others all cameras are off. Only Raghav, Roshan and Pratham. Yes, all of you write it down and on your cameras.
done now, all of you? Yes, ma'am. So now second property क्या है? Colligative property of solution of electrolytes are greater than colligative property of solution of non-electrolytes. Okay, all of you, this is clear? समझा ना क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे I is greater than 1 and यहाँ पे I is equal to 1. तो बट ऑब्वियस है ना कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा. नाउ सपोज यू हैव अ टू सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है. फॉर एग्जांपल इसका कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर और इसका भी 2 मोलर है. हियर इट इज NaCl एंड हियर इट इज ग्लूकोज. तो क्या होगा? मुझे डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, एलिवेशन कैलकुलेट करना है. तो इट विल बी व्हाट 2 into वाटर के अंदर ही है. दिस इज इन वाटर, दिस इज ऑल्सो इन वाटर. सो Kb विल बी सेम ना फॉर बोथ केस एंड मोलालिटी इज ऑल्सो सेम. सो ये क्या हो जाएगा? 4 Kb होगा. और ये क्या होगा? Kb into 2, that is 2 Kb. So इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है ना than that of this. So electrolytes have more colligative property than that of non-electrolyte. Clear all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Third property क्या है? The molar mass. So molar mass of electrolytes in aqueous solution is determined by colligative property found to be considerably lower than formula mass. So अभी ये क्यों होता है ऐसा बताओ? Considerably lower than formula mass. जो तुम्हारा फॉर्मूला है अभी जैसे NaCl है, it is 58.5, but वो डिसोसिएट हो जाता है कि नहीं? It gets break ना, तो उसका Yes, मोलार मास क्या होगा? डिक्रीज होगा ना? Yes, all of you, correct ना? It will get decreased. Or you can just derive it from formula. कोई भी colligative property ले लो, जैसे delta Tb is directly proportional to number of moles of solute. Okay, delta Tb will be what? W2 upon M2. So delta Tb is inversely proportional to M2. Yes. So molar mass is inversely proportional to colligative property. yes, ma'am. But for means वो तो जनरल है कि means वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी होने वाला है. बट फॉर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग उसको सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं आयंस के अंदर. करेक्ट. एंड व्हेन दे गेट ब्रेक इनटू आयन तो क्या होता है? When they get break into iron, तो उनका मास क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है ना, कम हो जाता है. Clear? So therefore it is written. फॉर्मूला यानी फॉर्मूला मास सबको मालूम है कि नहीं? फॉर्मूला का मास NaCl is a formula. उसका मास है 58.5. बट जब भी हम लोग उसको सोल्यूशन में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है Na+Cl- में.
तो वो मास क्या हो गया, ब्रेक हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। सो अभी हम लोग ने तीनों प्रॉपर्टी कर लिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेंट ऑफ फैक्टर। ये लिखना है किसी को तो फटाफट लिख लो। If you have any questions, you can ask. मीत हो गया सब वीडियोस देख के जो भी मिस हुए थे? नहीं मैम, सारे नहीं हुए क्योंकि अभी मैं ग्रीन केमिस्ट्री का वो कर रहा था ना, इसलिए। फिर अभी कभी करोगे? अभी नेक्स्ट चलेगा वीक मैम, में मतलब अभी एग्जाम है ना, तो आयोनिक फिर उससे चालू पहले करो। कंप्लीट कर दूंगा मैम। अभी नेक्स्ट वीक में तो मैं आयोनिक चालू कर दूंगी, तुम्हारा एग्जाम जब भी है। So when you अभी will sort कल it out? टेस्ट हो जाएगा ना, तो फिर संडे है पूरा, तो फिर कल के दिन में हो जाएगा मोस्टली मेरा कंप्लीट। 40s में मीत 40s में मार्क्स लाने हैं 50 में से। यस मैम, श्योर 34 आया ना अभी दिस वीक। मैम, केमिस्ट्री में 34 आया। हाँ, so you have to be in 40s now in for all chapters. श्योर मैम। और ये कौन हीरो है यहाँ पे? प्रथम? हाँ प्रथम, क्या मेकओवर कर लिया तुमने गॉगल वगैरह लगा के? हाँ मेकओवर, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, ऑनलाइन कंटाला, इसलिए सबको हंसाने का जिम्मा लिया है तुमने? नहीं मिस। और क्या कुछ क्या लग रहा है अभी? प्रथम इम्प्रूवमेंट आया मार्क्स में पहले से? हाँ मिस। कितना आया? 40 आया ना? अच्छा, हाँ तो उसको मेंटेन करो, अभी सोल्यूशन में भी आना चाहिए। सॉलिड हाँ स्टेट चैप्टर है। हाँ लिया टेकअप सोनिया मैम ने सोल्यूशन चैप्टर का? मिस, ये वीक लेंगे। हाँ ठीक है। और मिहिर कहाँ पे जाता है? बोरिवली जाता है क्या? हाँ मैम, मैं बोरडी ब्रांच जाता हूँ। तो वहाँ मतलब पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही जाता हूँ। वहाँ पे कौन टेकअप लेता है? वहाँ पे मैम टेकअप नहीं होता अभी। कैसा है, जहाँ पे जो 3 मैनेजमेंट होते हैं ना, जाते वक्त उनको देना पड़ता है, मतलब क्या किया वो पूछते हैं। जिग्नेश सर भी होते हैं, तो फिर वो बीच में पूछते रहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है आज के दिन में। और यश नहीं आता है टेकअप के लिए? यश मिस वो सुबह कॉलेज रहता है ना, इसके लिए नहीं जमता, प्लस तो मैं क्या बहुत है दूर है। कॉलेज में? क्या है वो तो तुम उधर जाके भी कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड। कितना मार्क्स आया सॉलिड स्टेट में? क्या बोलो, कितना मार्क्स आया? बोल नहीं सकते हो, इतना कम है मार्क्स। मिस 30। सिर्फ 30 आया है? फिर शायद तुम ओरल वगैरह देते थे तो और अच्छे से और ज्यादा आते थे 10 मार्क्स। So you people are chatting. मैं सेटिंग चेंज करती हूँ। चलो ठीक है। निकी को कितना आया मार्क्स? 39. 29. So less, Nikki. Miss, Why? 39. 39. Okay. And what about Maitri? Yes, Miss- Maitri. I am board student. हाँ I Maitri am board board student. कब से हो गई? 12th स्टैंडर्ड में आते हैं। नहीं मैम, मेरे को नाटा देना है, सीटी नहीं देना। ओके। और प्रीति को कितना मार्क्स आया? 36.
तनुष is I think highest ना तनुष कितना है तनुष 43 नहीं मैम 40 आया 40 so who has crossed 40 anyone Raghav हार्दिक हार्दिक को कितना है 38 समथिंग है 35 तो मार्वल से रहता है पेपर तो तुम लोग दे देते हो अच्छे मार्क्स आते हैं अभी नेक्स्ट टाइम मार्वल से नहीं दूंगी पेपर में सॉलिड स्टेट देखते हैं फिर कितना आता है आपने मिस YouTube वीडियो में जो दिखाया था सॉलिड स्टेट के सॉल्विंग्स उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे? वो मार्वल में से ही थे ना वो मार्वल में तो ऐसे भी कितने कम क्वेश्चंस है सॉलिड स्टेट के तो अभी पहला ही था इसीलिए मार्वल में से आया अभी नेक्स्ट टाइम मार्वल में से नहीं होगा पेपर तो तब भी जिसको 40 के आप आएगा that will be more considered चलो अभी नेक्स्ट करते हैं दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर Vent-Off factor is denoted by I. So what is Vent-Off factor? It is the ratio of colligative properties. It is a तो ratio अभी हम of लोग ने जो आई पढ़ा वो वेंट ऑफ फैक्टर ही था ना yes, yes. So it is defined as the ratio of colligative property of a solution of electrolytes divided by the colligative properties of non-electrolyte solution of same concentration. Colligative, it is a ratio of colligative property of electrolyte solution to that of colligative property of non-electrolyte solution of same concentration. So यहाँ पे यही सब दिया है ये जो भी कुछ न्यूमरेटर में है this is for electrolytes this is for electrolyte and this is for non-electrolyte this is depression in freezing point of electrolytes and this is the depression in freezing point of non-electrolytes this is for elevation of boiling point of electrolytes and this is for the elevation in boiling point of non-electrolytes. Lowering of vapor pressure of electrolytes and this is the lowering of vapor pressure of non-electrolytes. Osmotic pressure of electrolytes and this is the osmotic pressure of non-electrolytes. Here, now we have already discussed this. मैम एक मिनट वो लास्ट स्लाइड दिखाऊंगे आप थैंक यू मैम So now I is the moles of particles in solution after dissociation to that of moles of formula unit dissolved in solution. Now for example, तुम्हारे पास में solution है NaCl का, ठीक है? अभी it is getting dissociated to Na plus and Cl minus. So I is what? कितने moles of particle in solution after dissociation. So कितने moles dissociate हुए हैं? All of you? Yes, 2 ना? कितने ions produce हुए Yes. after dissociation? 2. और 2. initially हम लोग ने कितना ऐड किया था? 1. So I is 2. Clear? और मैं कंसीडर क्या कर रही हूँ कि NaCl जो है वो 100% डिसोसिएट हो रहा है. ओके मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ 100% डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का. क्लियर? यस Yes, एवरीवन इट इज Yes, क्लियर. सो ये में फॉर्मूला सबको 100% समझ. dissociate- हाँ Means actual में 100% डिसोसिएट होता है कि हमने सिर्फ assumption लिया है? हाँ वो डिपेंड करता है ना कोई कोई सॉल्ट स्पेरिंगली सोल्यूबल भी होते हैं. सो 100% नहीं. अभी जैसे NaCl है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है सो उसका 100% डिसोसिएशन है. बट जैसे तुम्हारा AgNO3 है इट इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट तो उसका 60% डिसोसिएशन ही होता है.
तो 2 moles 1 will not give 2, it will give less than 2, means तुम्हारा जो I आएगा it will be between 1 and 2. वो भी आगे करेंगे हम लोग, just have some मैम patience. अगर न्यूमरेटर में फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस पूछा तो हम लोग को वो लोग का मोलर मास नहीं लेना रहता क्या? हाँ. Okay, all of you. So this formula is clear. अभी next नहीं, formula बिकॉज फिर देखो. आपने 2 कैसे दिया वो नहीं समझ। ये 2 आयंस प्रोड्यूस किया ना. मोल्स, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए मोल्स? 2 ना. सपोज तुम्हारा Yes. कंपाउंड है Na2S, so it will give you Na plus and S2 minus. Yes. So कितने Yes, मोल्स ma'am. प्रोड्यूस हो रहे हैं? 3 ना. 3 और इनिशियली कितना है? 1. So I is 3. बट फिर Clear? वो लोग ने फॉर्मूला मास अगर पूछते तो फिर 3 कैसे आएगा? उसके नहीं बदले नहीं, उसका पूरा फॉर्मूला मास मास का आएगा ना। तो मैं ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट वाला. मैम ओके. एंड सेकंड वाले में क्या होगा फिर? हाँ, बता रही हूँ. I is what? Formula mass of substance upon observed molar mass of substance. So I is what? ये वाला देखो, ये ज्यादा समझ में आएगा. I is M theoretical upon M observed. अब भी हम लोग ने जस्ट किया कि ऑब्जर्व. अभी थियोरेटिकल का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें फॉर्मूला से मिलता है. जैसे तुम्हारा NaCl है, तो इसका फॉर्मूला मास कितना है? 58.5. सो दिस इज थियोरेटिकल. ओके. बट ऑब्जर्व्ड यानी क्या? जो तुम्हें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में मिलता है वो. क्लियर? ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल. मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मोलर मास मिला वैसा? हाँ, एक्सपेरिमेंट से जो मिलेगा वो. तो वो हो सकता है 58.5 से ज्यादा हो, कम हो, डिपेंड तुम्हारा प्रोसेस क्या हो रहा है. डिसोसिएशन हो रहा है तो कम ही होगा ना, क्योंकि तो फिर NaCl रेशियो अलग आएगा ना? अगर NaCl को कंसीडर करेंगे और हमको 2/1 आया तो फिर इसमें कैसे आएगा? बस किसमें? हाँ, ये वो वाले अब फॉर्मूला सब्स करेंगे ना तो तुम्हें थोड़ा आइडिया आएगा कैसे आएगा वो. ठीक है. अभी जैसे तुम्हें मास बोला है, अभी हम लोग ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चन किए जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आता था, कैलकुलेट मोलर मास. किया है ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने? ऐसे यस. क्वेश्चंस मैम वापस से रिपीट करना. वी हैव डन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, करेक्ट? तो उसमें अपने को ऐसा क्वेश्चन आता था, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. मींस तुम्हें डिप्रेशन. ma'am. अभी सपोज तुम्हें इधर बोला है डेल्टा TB इज गिवन, KB इज गिवन, फिर W2 गिवन है, W1 इज गिवन एंड दे टेल यू टू कैलकुलेट M2. ऐसे क्वेश्चंस किए ना हम लोग ने सॉल्व. यस मैम. तो वो जो M2 हम लोग को मिलता है, ये क्या है? कौन सा M2 है? एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअल है. क्लियर? और वही अभी Yes, सपोज तुम्हारा सब्सटेंस है ग्लूकोज, उसका ही बोल रहे करने के लिए M2 कैलकुलेट. तो तुम्हें इसके फॉर्मूला से आएगा ना, इट इज 180. सो दैट इज द स्टैंडर्ड आइडियल 180 है. बट हो सकता है कि सोल्यूशन में जाने के बाद कुछ हो जाए जिसके वजह से मास कम हो या फिर ज्यादा हो, तो वो जो भी आएगा तुम्हें वो M2 रहेगा. क्लियर? और ज्यादा कैसे होगा मैम? मतलब सॉल्यूशन में तो डिसोसिएशन ही हाँ, होता है. क्योंकि सोल्यूशन में एसोसिएशन प्रोसेस भी होता है. जैसे डिसोसिएशन होता है वैसा एसोसिएशन भी होता है. बट एसोसिएशन तुम लोग को बोर्ड्स में नहीं है, यू जस्ट हैव डिसोसिएशन. सो मैंने अभी डिसोसिएशन वाला तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया है. NaCl है, KCl है, दे गेट डिसोसिएट टू K plus Cl minus, तो मास कम होता है. बट एसोसिएशन